Hello students, welcome to Chemistry Point. Myself Khushwant Trivedi. Today we are going to learn how to assign oxidation number, which is in your class 11th redox reaction chapter. Okay, so first of all we have to learn about the oxidation number. What is the oxidation number? An oxidation number is a number to assign is a number assigned to compound or element to show how many electrons were lost or gained. It means that in a compound any element present how many electron it is gaining or losing in that particular compound. We are going to discuss much more examples for that, for explaining that point, but now just to learn the definition. And a compound, an oxidation number is a number assigned to a compound or element to show how many electrons were lost or gained. A negative number shows that the electron were gained. It means that in any compound, if an atom has the oxidation number +1 or +2 or +3, it means that the atom is losing some electrons. Okay, and if the oxidation number is -1, -2 or -3, it means that that atom in that particular compound is accepting or gaining the electrons. The negative number shows the electron were gained, while a positive number shows that electron were lost. Oxidation number can be assigned to an element, a particular part of the compound, or the entire compound. For a whole compound, the oxidation number is 0 as long it has no ionic charge. Okay, so we will discuss all those points. First of all, just remember the rules, which are the basic rules to identify the oxidation number. The number one is oxidation number of the element in the free or elementary state is always 0. What does it mean? If just assume that O2 is oxygen molecule, where the oxidation number of the oxygen atom is always considered as 0. For P4 molecule, देखो यहाँ पर आपको elementary state की बात करी है. Elementary state means what? Elementary state means that molecule should be in the actual state in which that molecule present in nature, and that is the P4. Phosphorus does not exist in the P2 or P3 state. It is always present in P4 state, and this is it is the elemental state of that phosphorus. Okay, now for the similar examples are O3, that is ozone molecule. Just like that, we know sulfur present in S8 form. Okay, another more examples are like N2, H2, helium. All those examples have oxidation number equal to 0. किसी भी इक्वेशन में अगर आपको जस्ट ऐसे लिखा हुआ है H2 plus Cl2 gives 2HCl, then H2 का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 कंसिडर किया जाएगा, एंड Cl2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर 0 कंसिडर किया जाएगा. रिमेंबर दैट पॉइंट. ओके, नाउ come to the next point. The next point is the oxidation number of the alkali metals and alkaline earth metals are always +1 and +2 respectively. We can add in their compounds. In their compounds, their oxidation number is always +1 or +2. Like NaCl, Na has oxidation number equal to +1. KCl, it is +1. Na2SO4, the oxidation number of sodium will be +1. Just like that, cesium chloride +1. Just like that, magnesium chloride +2, because it is alkaline earth metal. Okay, just like that, calcium sulfate, it is +2. Okay, so all the examples where the alkali metals or the alkaline earth metals are present,
always it has oxidation number +1 for the alkali metals and +2 for the alkaline earth metal. Okay, come to the next point, third one. The oxidation number of fluorine is always -1 in all its compound. Remember that fluorine has always -1 oxidation number. कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, उन सभी एग्जाम्पल्स में आपको फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 मिलेगा. बट रिमेंबर दैट शुड नॉट बी F2, बिकॉज F2 के अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बोलते हैं, 0, बिकॉज इट इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ फ्लोरीन. वी आर सेइंग इन देयर कंपाउंड्स एंड देयर नेक्स्ट एटम शुड बी डिफरेंट, लाइक HF. In HF, fluorine has -1 oxidation state. Any other XeF2, it is -1 oxidation state. Okay, just like that, KF, NaF, all in all the compounds, fluorine has -1 oxidation states. But other halogens, if the halogens are, remember, if all those halogens are present with least electronegative element. What is the electronegativity? The tendency to attract the electron pair, bonded pairs towards itself. That is the tendency, electronegativity. Least electronegative atoms, then halogens, तो यहाँ पर लिखना है with least electronegative atoms, then halogens. Other all halogens will have -1 oxidation state. Just for example, HCl. Cl has -1 oxidation state. In NaCl, Cl has -1 oxidation state. In Ki, iodine has -1 oxidation state, that is in the iodide ion form. So other halogen atoms all have -1 oxidation states when they occurs as halides ion. Okay, now next point, when halogens are present with more electronegative atom. पीछे हमने यहाँ देखा with least electronegative atom always halogens have -1 oxidation states, but with more electronegative atom all the halogens have positive oxidation state. Okay, for examples, as we know, interhalogen compounds. Okay, so interhalogen compounds are what? Where the halogens have compounds with the other halogen compounds, but one will be the more electronegative and the other will be the less electronegative. Here iodine is the least electronegative, fluorine is the more electronegative. As we know, fluorine has always -1 oxidation state, and the iodine will have +7 oxidation state. Okay, so for iodine this is कैसे निकालते हैं इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं, बट जस्ट फॉर रिमेंबर x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिकम्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. Interhalogen compounds you will learn about in class 12th, p block elements, in the chapter of p block elements. So here just interhalogen compounds mean what? When two or more than two halogen atoms are bonded with each other, those all compounds are known as interhalogen compounds. Okay, just like that, Cl2O7 or ClO4 minus, or in all those compounds, chlorine will have positive oxidation number. How to calculate we will learn in the next slides, but just to remember, the halogen if present with the more electronegative atoms, then their oxidation number will be positive. Okay, यहाँ पर आप ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दैट्स वाई हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, एंड ये आपको याद रखना है, राइट. नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +1 इन ऑल इट्स कंपाउंड. इट मीन्स जब भी हाइड्रोजन किसी भी नॉर्मल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1. इवन चाहे वो HCl है, चाहे वो HNO3 है, चाहे वो कोई भी दूसरा कंपाउंड है, बट NH3 में भी +1. बट एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स. मेटल हाइड्राइड्स क्या होता है, जब भी कोई मेटल एटम
हाइड्रोजन एटम के साथ में कंपाउंड बनाता है, लाइक NaH, KH, MgH2, ठीक है, कैल्शियम CaH2। इन सभी एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -1 रहने वाला है, बिकॉज हाइड्रोजन व्हेन प्रेजेंट विद द मेटल एटम्स, मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड, एंड मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -1 रहेगा। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इज असाइंड टू ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन द मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। जैसा कि हमने पीछे भी एग्जांपल देखा H2O में, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -2 रहने वाला है, बिकॉज ऑक्सीजन जनरली अपने सारी कंपाउंड्स के अंदर क्या रखता है? ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखता है, चाहे वो कोई सा भी कंपाउंड, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो। जनरल केस में हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हैं? -2 मानते हैं। CO2 के अंदर भी हम क्या लेने वाले हैं? -2। बट जो याद रखने वाली बात है वो है पेरोक्साइड्स के अंदर। पेरोक्साइड्स क्या होते हैं? पेरोक्साइड्स दोज कंपाउंड्स in which oxygen have -1 oxidation state and oxygen atoms are bonded with single bond. All those compounds are known as peroxides, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल रहता है H2O2, जिसको आप अपने हाइड्रोजन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? -1 रहता है। सो पेरोक्साइड्स के अंदर आपको याद रखना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 रहेगा। सिमिलरली एक्सेप्शन ऑल्सो अकर्स इन द कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, O2F2 एंड OF2। ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। लाइक O2F2 में because oxygen is present with the fluorine and we had learned that fluorine have -1 oxidation state, so here oxygen will have 2x plus 2 multiplied by -1 is equal to 0, 2x is equal to +2 and x becomes 2 by 2 plus 1, that is oxygen का oxidation number यहाँ पर रह जाएगा +1। in case of OF2 it becomes +2। अगर आप इसी तरह से इसको निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? +2। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आता है सुपर ऑक्साइड्स का, लाइक KO2। तो अगर आप KO2 में देखें तो KO2 में ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एज वी नो पोटेशियम हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड -2। चलो हमको तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसको x को, तो मल्टीप्लाइड बाय +2x इज इक्वल टू 0, 2x बिकम्स -1 एंड x बिकम्स -1/2। सो इन सुपर ऑक्साइड्स KO2, RbO2, हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन बिकम्स -half, है ना, रिमेंबर दैट। ओके, सो O2F2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखना होता है OF2, O2F2 एंड KO2, RbO2। इनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर -1 हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ये -half हो जाता है। The next point, in accordance with the principle of conservation of charge, the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms is in molecule is 0। जैसा कि हम लोगों ने देखा, जहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, हमने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम क्या माना है? 0। हर जगह जहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन करा है क्या माना है? 0। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है, आयन इन द सेंस आपको बोल दिया गया SO4 2- के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो जो भी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे उसमें अब इज इक्वल टू में -2 रखना है। सर 0 कब रखना है? 0 तब रखना है जब हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर अपने आप पे कोई चार्ज ना हो, देन वी हैव टू पुट इट 0। बट अगर पॉली एटॉमिक आयन की बात हो रही है तब आप लोगों को यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर उस आयन के ऊपर के चार्ज को रखना है। रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, नाउ मूव टू दी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मूव टू दी सम एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं उनको हम समझते हैं, और एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम कुछ मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल मॉलिक्यूल्स CO2 की बात करता हूँ।
CO2 में अगर आपको कोई पूछे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप x मानेंगे, देन ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 0। सर -2 क्यों माना? अभी आपने रूल्स में पढ़ा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या रहती है, -2, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। वो यहाँ पे एक्सेप्शंस हमें नहीं दिख रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन फ्लोरीन के सामने है और ना ही ऑक्सीजन किसी अल्कली मेटल्स के सामने है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जनरल वे में -2 रखेगा। ओके, अब x की वैल्यू हम निकालें तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये -4 हो जाएगा और इज इक्वल टू में ले जाएंगे, ये +4 आ जाना है, तो हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, +4। ओके, राइट। नाउ CO2 में ये किसके इक्वल आ गया, +4 के। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NH3 में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछते हैं, नाइट्रोजन को x माना जाएगा, +3 मल्टीप्लाइड बाय +1 इज इक्वल टू 0। नाउ वैल्यू ऑफ x, तो अगर देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हम इसको चेंज कर देंगे, इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे, x क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। नाउ अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तब हम क्या करेंगे, तो सीधा मैं उस एग्जाम्पल्स के आप ऊपर आ जाता हूँ, Cr2O7 2- और आपको अगर पूछ लिया जाए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, देन हाउ मेनी क्रोमियम आर देयर, 2, सो वी हैव टू पुट 2x। नाउ ऐड करेंगे +7 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन को हम क्या मानते हैं, -2 इज इक्वल टू -2। क्यों लिया -2? क्योंकि जो पॉली एटॉमिक आयन का चार्ज या पॉली एटॉमिक आयंस जितने भी होते हैं उनके ऊपर के चार्जेस जो होते हैं उन लोगों को हम लोग इज इक्वल टू में रख देते हैं। नाउ 2x प्लस माइनस हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +14 -2 दैट इज 12 एंड x बिकम्स 12/2 एंड इट इज +6। सो यहाँ पर Cr2O7 2- में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, +6। नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, अगर हमको पूछा जाता है CH2Cl2, सपोज करो हमें पूछा जा रहा है CH2Cl2 में आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना हो तो कार्बन को x मान लिया जाएगा। हाइड्रोजन्स पे जनरली +1 चार्ज होता है, प्लस क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है इज इक्वल टू 0, x + 2 - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिकम 0। सो यहाँ पर आप लोगों के जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके 0 के इक्वल आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके 0 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास में कार्बन को x माना और x का हमारा वैल्यू आ गया 0। देन फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। PO4 3- PO4 3- में हम लोगों को फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, x मान लिया जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 एंड इज इक्वल टू -3, 4 - 8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 और प्लस का होने के बाद में ये -3, 5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो x बिकम्स इज इक्वल टू +5। नाउ सिक्स्थ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए HNO3, तो HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का तो H का +1 होता है, N को x मान लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 उधर चला जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाना है, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाना है और ये आ जाना है आपके पास में +5। तो HNO3 के अंदर आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5, राइट। इसी तरह से आपको पूछा जाए NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बोलते हैं। तो अमोनियम आयन जो है उसके लिए हम अगर बात करें तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का x + 4 + 1 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू माइनस का 4 + 1 एंड इट बिकम्स -3। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, -3 हो जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। 8th एग्जाम्पल देखते हैं
BH4 में आपको बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें सब पता है +1, बी को हम यहाँ पे x मानेंगे। अब यहाँ पर आप याद रखना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आप गलती करते हो, आप +1 रख देते हो, जबकि आपको यहाँ पे क्या रखना होता है -1। सर व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ हाइड्रोजन यहाँ पर सोडियम के साथ प्रेजेंट है, हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हम आगे बहुत सारी दूसरी क्लासेस में, हम 12th क्लासेस में ज़्यादातर आता है, 11th में भी आपको सुनने को मिल जाता है, तब पढ़ते हैं, तो याद रखना है उसको। x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा +4, +1 हो जाएगा -1, एंड इट बिकम्स 4 - 1 दैट इज +3। तो यहाँ पर आपके पास बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाता है? +3 आ जाता है। इसी तरह का कोई एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। अब देखिए यहाँ पर करने के लिए हम लोग ये भी पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न इज़ टोटल 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ 24 तो है हमारे पास हाइड्रोजन्स, और 24 हाइड्रोजन्स का मतलब हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाय +1 दैट इज़ प्लस का 24। इसी तरह से ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 12, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, तो ये हो जाएगा -24, जो कि फर्दर कैंसिल आउट हो जाना है, इसलिए इसका सॉल्यूशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप करते भी हो देन वो कैंसिल आउट हो जाना है। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो K का हो जाएगा +1, एल्यूमिनियम का होता है +3, ये हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के होल के बाहर होल में यहाँ पे 2 लिख रखा है, तो हम यहाँ पे 2x ले लेंगे, देन +4 × 8, तो 8 ऑक्सीजन है हमारे पास, और एक ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2 होता है, तो मैं यहाँ पे 8 ऑक्सीजन के लिए -2 ऑक्सीडेशन नंबर रख के इज इक्वल टू मैं 0 लिख देता हूँ। 2x इज इक्वल टू 8 2 माइनस का 16 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 16, प्लस का 3 और प्लस का 1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, और 16 - 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, एंड x इज इक्वल टू हो जाना है 12/2 दैट इज +6। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने हैं, बट हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। इसी तरह से एक एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूँ ClO4- का, तो ClO4- के अंदर जैसा कि अगर आपको पूछा जाए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो x + 4 × -2 इज इक्वल टू -1, x 4 × 2 = 8, तो ये माइनस का 8 हो जाना है प्लस का 8, माइनस का 1, और ये हो जाना है प्लस का 7। तो स्टूडेंट्स हमने टोटल 10 एग्जाम्पल्स को किया है। एक बार के लिए आप इनको देखेंगे, चेक करेंगे। इसके बाद में हम लोग कुछ नीट और IITs के कुछ कॉमन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बेसिक से हैं। हालांकि इसके अलावा भी 3-4 कॉन्सेप्ट्स और बच जाते हैं जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को ज़रूर डिस्कस करते हैं, बट आज के लिए इतना ही एक बार के लिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट किसी भी दूसरी क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।